Good morning, students. We are not going to start with a new chapter of biomolecules. We have to start with animal physiology or human physiology. I am trying to complete one chapter, chapter number 17, before your PT. Okay, that's why I can include in the PT because some of students are new and chapter biomolecule is lengthy, तो वो पहले cover होगा नहीं. So we have to start with chapter number 17, breathing and exchange of gases. This is chapter number 17. Chapter number 16 is of digestion and absorption. This is the first chapter of human physiology. Now CBSE removed this chapter from syllabus. ये कोविड-19 की वजह से रिवाइज सिलेबस में. So breathing and exchange of gases. Now amoeba, we can say euglena, we can say any sponge, or we can say any type of other animals. जैसे हम बात कर लें starfish की, or we can talk about any insect. Each and every organism, यानी कि each and every living being, each and every living creature respire. Every creature do exchange of gases, and the exchange of gases is oxygen in and CO2 out. Here I am talking about aerobic respiration. स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बेसिक मेंशन कर रहा हूँ. सो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. ओके, सो देयर आर थ्री टर्म्स. वन टर्म इज नोन एज respiration, other term is known as exchange of gases, and other term is known as breathing. एक बार देखें सारी चीजें एक ही लगती है लेकिन एक ही है नहीं. सो वेरी फर्स्ट इज द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस. फिजियोकेमिकल प्रोसेस है इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड्स टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में. फूड, ऑक्सीजन, it will release CO2 and energy. इन सिंपल रिएक्शन भी देखेंगे प्लांट रेस्पिरेशन में वहां पर कंप्लीट है कि ये वो प्रोसेस होता क्या है. हियर इज ओनली द वी कैन से फिजिकल प्रोसेस और वी कैन से morphological processes are only there. So respiration is a physio and chemical. Physio that means physical process है as well as chemical process है. So this reaction is exactly a chemical process, but the entry of oxygen and the release of CO2, this process is known as exchange of gases. Like this is amoeba, we know a process that is known as diffusion. By the process of diffusion, it can take up oxygen and can release CO2 by the process of diffusion. So this exchange of gases or O2 and CO2 in between environment and organism is known as exchange of gases. Now amoeba is doing exchange of gases. I am doing exchange of gases. Any plant doing exchange of gases, और कोई भी organism हो exchange of gases करता है. But how it do the exchange of gases? अब वो जो mechanism है that is known as breathing. Breathing mean mechanism of exchange of gases. The mechanism of exchange of gases is known as breathing. तो breathing में हम अगर हमारी बात करें तो हमारे मैकेनिज्म में हम दो प्रोसेस करते हैं. वन इज नोन एज इनहेलेशन एंड अदर इज नोन एज एक्सहेलेशन. दैट मीन taking in and taking
out. Okay, now how this process or this mechanism कैसे होता है, what are the different organs involved in this process, that we have to study in detail. The chemical process of respiration जो actual oxidation है वो अलग से चैप्टर है इन प्लांट फिजियोलॉजी में. ओके, सो respiration is a physiochemical process है. Exchange is the exchange of gases, that means from internal environment to external environment, and breathing is the mechanism of exchange of gases. Now each and or every organism having its own specific structures for exchange of gases, or we can say specific organs. Now see what are the different organs given in NCERT in different group of animals. Okay, so see, these are the different respiratory organs जो NCERT में इस चैप्टर में गिवन है. ओके, सो respiratory organ for exchange of gases, that means the main of respiratory organ is only for exchange of gases. The same respiratory system we studied in chapter number 4 in animal kingdom. We have seen that how porifera, coelenterata, ctenophora, platyhelminthes, escarabinths respire, and a true respiratory system starts from arthropoda. Before arthropoda जो respiratory system है complete, that is absent. So in sponge, coelenterats and flatworm की बात करें, so they exchange of gases through entire body surface. Okay, then earthworm में moist cuticle है, या we can see हम ये इसे skin की help से exchange of gases करता है. Then in insects में वो ट्रैकियल सिस्टम होता है. इन आर्थ्रोपोडा वी हैव टू मोर वर्ड्स हमने आर्थ्रोपोडा में देखे थे. एक था हमारे पास बुक लंग्स और एक था बुक गिल्स. तो ये है एक्वाटिक के लिए, जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है उनके लिए, और जो टेरेस्ट्रियल जो इंसेक्ट एमिलियन में क्या है, ट्रैकियल सिस्टम है या ट्रैकिया है. एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है, network of tubules. Now most aquatic arthropods में एक वेस्कुलराइज सिस्टम होता है. गिल्स जिनको बोलते हैं, वेस्कुलराइज मतलब इट मींस विद ब्लड, दैट मींस ब्लड जिसके अराउंड हो, तो वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है, मोलस्क है एंड फिश है. फिश में भी हमने देखा था कि दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स. इन फिश में हमने देखे कि गिल्स आर कवर्ड बाय ओपरकुलम और नॉट, बट वहां पर क्या थे, गिल्स थे. इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉग स्पेसिफिकली, तो फ्रॉग में गिल्स भी हैं, स्किन से भी करता है, लंग से भी करता है. गिल से मेनली करता है इन केस ऑफ लार्वा. ओके, स्किन से भी, लंग से भी. ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, ये एक्वाटिक फॉर्म है. ओके, गिल्स ओनली एक्वाटिक फॉर्म में होते हैं. देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में क्या थे, lungs. Okay, so these are the different respiratory organs. Sponge, coelenterate and flatworm में entire body surface, and earthworm, most cuticle, insect, tracheal system, most aquatic arthropods, mollusk, fish में vascular gills हैं. Then frog, gills भी हैं, skin भी है, lungs भी हैं. Then reptiles, birds and mammals में lungs. I'm not talking about exception of any reptiles, birds or mammal. Exception की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी में भी. It's a general thing. Okay, so these are the brief of respiratory organ in animal kingdom. Now we have to discuss detail about the respiratory system of human. Okay, तो human respiratory system के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे. क्लियर है? अब देखो, now we have to talk about human respiratory system. This is the respiratory system, not respiration. That means we have to discuss the different organs involved in exchange of gases. Now see, in general body part, whenever we talk about human body and when we study the human body, like in mathematics, we study that left hand side is equal to right hand side. That means this side is left, this side is right. But in human body, this is opposite है. जो ये साइड है ये राइट होती है, ये साइड क्या होती है, लेफ्ट होती है. सपोज करो मैं एक बॉडी हूँ, स्ट्रेचर पर ऐसे पड़ी हूँ, तो कोई मुझे सामने से स्टडी करेगा तो दैट मीन्स ये ऐसे ही होगा. तो ये क्या होगा, मुझे मेरा राइट राइट ही रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट ही रहेगा. ओके, तो दैट मीन्स सामने वाले के लिए वो तो लेफ्ट होता है ना, यानी कि दिस इज लेफ्ट फॉर मी
बट बॉडी के लिए क्या होगा, राइट होगा। तो दिस साइड राइट हैंड साइड, ओके, एंड ये होगी लेफ्ट साइड। एक तो ये ध्यान रखना है लेफ्ट राइट ऑर्गन्स के लिए, क्लियर है। नाउ if we talk about human respiratory system, then it divided into two parts. One is known as conducting portion, other is known as respiratory portion. Conducting portion mean जो क्या करता है, गैस को एयर को इनटेक करता है और उसको पास करता है एक्चुअल ऑर्गन ऑफ डिफ्यूजन तक। जैसे हम ये मान लें कि देयर इज ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, कहीं वाटर वर्क से आ रहा है और हमारे घर तक जो टैप चलती है दैट इज एक्चुअली द रेस्पिरेटरी पोर्शन, और जितना रास्ते में जितनी भी ट्यूब्स थी, पाइप्स थी, वो क्या है, कंडक्टिंग पोर्शन है। ओके, तो इसका रूट क्या रहेगा एयर का, एंट्री और एग्जिट का। द वेरी फर्स्ट इज नोस्ट्रिल, देन नेजल कैविटीज, internal nares, nostril also known as external nares, then nasal cavity, internal nares, nasopharynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, bronchioles, alveoli duct and alveoli। अब इसमें जो रेस्पिरेटरी पोर्शन है वो फॉर्म करता है सिर्फ ये alveoli duct and alveoli, ओके। बाकी जितना भी पोर्शन है दैट इज कंडक्टिंग पोर्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द मेन टैप ऑफ आवर हाउस इज द एल्वेलाई, और उस टैप के साथ जो डक्ट है वो एल्वेलाई डक्ट है। ये इतना ही रेस्पिरेटरी पोर्शन है, बाकी सारा का सारा दैट पोर्शन इज नोन एज कंडक्टिंग पोर्शन। तो रेस्पिरेटरी पोर्शन में क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी ऑर्गन्स, और हम कह सकते हैं ब्लड में, ओके। तो रेस्ट इज नोन एज कंडक्टिंग पोर्शन। नाउ दिस पार्ट लाइक ब्रोंकाई टू एल्वेलाई, ये जो इतना पार्ट है ये बनाता है लंग्स, क्लियर है। अब हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके, या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक हम करेंगे जिसमें हमारा आएगा नेजल चैम्बर, दूसरा हमारा आएगा फेरिंक्स, तीसरा आएगा हमारा ट्रैकिया, और चौथा आएगा हमारे पास लंग्स। यानी कि 1 इज नेजल चैम्बर, देन फेरिंक्स, देन ट्रैकिया, देन लंग्स, ओके। वी विल डिस्कस these all parts in detail. Now come to this part, nasal chamber and pharynx up to trachea. Now see, lower lip, upper lip, just above the upper lip there are pair of, we can say, opening. These openings are known as external nares or we can say nostrils. अब ये nostril एक किसमें है, लेफ्ट साइड में है, एक क्या है, राइट साइड में है। देन दिस नोस्ट्रिल गेट सेपरेटेड, ये एक बीच में जगह है, देखो, जो किसी चीज को सेपरेट करता है बायोलॉजिकली, उस पोर्शन को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो दैट मीन्स नोस्ट्रिल के बाद में जो हमारे पास जो आएगी कैविटीज, इन द कैविटीज आएगी, दीज कैविटीज आर डिवाइडेड बाय ए अदर स्ट्रक्चर नोन एज नेजल सेप्टम, क्लियर है। यानी कि कोई पोर्शन था, ये बीच वाला नेजल सेप्टम, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द वन नोस्ट्रिल, ये चैम्बर हो गया, ये दूसरा चैम्बर हो गया, ये बीच में इसको सेपरेट कर रहा है। अब यहां से ये जो ओपनिंग है ये हो रही है, तो ये अंदर की साइड से भी तो ओपनिंग है, लाइक वी कैन से सपोज दिस इज द नोस्ट्रिल, ये दिस साइड एंड दिस साइड, ये 2 चैम्बर हो गए, ये बीच का हो गया नेजल सेप्टम। तो ये दूसरी साइड भी तो यहां से ये खुल रहा है, तो ये हो जाएगा इंटरनल नेयर्स, यानी कि यहां पे भी ओपनिंग होगी। दिस इज द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल्स, नेजल सेप्टम, देन ये हो गया हमारे पास नेजल कैविटीज, और नेजल कैविटीज जो इनर है वो क्या हो जाएगा, इंटरनल नोस्ट्रिल ओपनिंग, और ओपनिंग की जगह इसको हम बोलेंगे इंटरनल नेल्स,
ओके, तो एक ओपनिंग ये होगी, एक ओपनिंग ये होगी। अब देखो कोई रास्ता है हमारे पास, जैसे अपने स्कूल का ये लो, ये यहां से हम ऐसे जाते हैं, दिस इज द, ये जिंदल की तरफ जाती है, ये रोड आई सेक्टर 16 से, ये आगे सीधी चली गई सेंट मेरी को, और यहां से ये चली गई ओपीजीएमएस को। अब देखो हम इसको एक रोड को हटा रहे हैं यहां से, बिकॉज वी वांट ओनली 3। ओके, ठीक है। नाउ सी, एक तो ये है, ये हमारी नोस्ट्रिल वाली, एक जो हमारी ओपनिंग है वो है माउथ वाली, और एक जो ओपनिंग है वो हमारी ईयर वाली। कई बार कान में पानी चला जाता है तो हमें वो यहाँ फील होता है, बिकॉज देयर इज ए, अगर मैं यहाँ से कान से डालना नहीं, कान की जो ओपनिंग है बीच में एक पर्दे के थ्रू, दैट मीन्स एयर है वो डायरेक्टली यहाँ से आती है। कई बार कान से धुआं नहीं निकालते हैं इसको ऐसे बंद करके, समझ में आ रही है बात? तो यानी कि जो कान की जो ओपनिंग है ईयर की, वो भी अंदर यहाँ खुल रही है, अंदर कहीं माउथ की भी है और नेजल कैविटी की है। यानी कि जो चौक है हमारा बीच में, जहां से हम अलग अलग जाते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग, किसके लिए? वो हमारी दैट मीन्स ओरल कैविटी के लिए। वो एक कैनाल आती है, दैट मीन्स ईयर कैनाल बोल दो, ईयर ट्यूब बोल दो, उसके लिए, और नोस्ट्रिल जो हमारा नेजल चैम्बर उसके लिए। यानी कि ये जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज फेरिंग्स। बात समझ में आई या नहीं आई? इसको ध्यान से देखना है। नाउ फेरिंग्स में 3 रास्ते होंगे, यानी कि 3 अलग अलग हैं। देखो, जो नोस्ट्रिल से आया दैट इज नोन एज नेजो फेरिंग्स। जो ओरल कैविटी से आया यहां से, दैट इज नोन एज ओरो फेरिंग्स। ओपनिंग ट्रैकिया के ऊपर से खुलेगी, दैट इज नोन एज लैरिंगो फेरिंग्स। ओके, ये हो गया हमारा ओरल कैविटी वाला रास्ता, ये हो गया नेजल चैम्बर वाला। एक ओपनिंग आती है ईयर की तरफ से, इसको हम बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, ये आती है ईयर की तरफ से। ओके, तो यूस्टेचियन ट्यूब और जो ये नोस्ट्रिल वाला हमारा रास्ता है, ये ओपन होता है नेजोफेरिंग्स में, ओरल कैविटी ओपन होती है ओरोफेरिंग्स में, और जो ट्रैकिया है वो इस तरफ से ओपन होता है लैरिंगोफेरिंग्स में। तो जो हमारा फेरिंग्स है उसमें 3 तरह के अलग अलग रीजन हो गए। कौन कौन से? एक तो लैरिंगोफेरिंग्स, देन नेसोफेरिंग्स, देन ओरोफेरिंग्स। ये तीनों फेरिंग्स हैं। लैरिंगोफेरिंग्स में क्या ओपन हो रहा है? ट्रैकिया। इसमें दैट मीन्स वी कैन से नेजल चैम्बर एंड ईयर कैनाल, और इसमें हो रहा है ओरोफेरिंग्स में ओरल कैविटी। तो ये 3 अलग अलग रास्ते हो गए, और ये यहां पर खुल रहे हैं, दैट पर्सन इज नोन एज लैरिंग्स, इस फेरिंग्स। ओके, अब देखो, दिस इज द नेजल कैविटी, यूस्टेचियन कैनाल फ्रॉम ईयर, ओरल कैविटी। ये दोनों जहां ओपन होती है दैट इज नोन एज नेजोफेरिंग्स। माउथ कैविटी जहां पर ओपन होती है दैट इज नोन एज ओरोफेरिंग्स, और ट्रैकिया जहां पर ओपन होता है दैट इज नोन एज लैरिंगोफेरिंग्स। अब ये लैरिंगोफेरिंग्स वर्ड कहां से आया? नाउ अगर हम यहां देखें तो आउटसाइड, बाहर ऐसे आगे की तरफ दैट इज ट्रैकिया है, उसके पीछे की तरफ क्या है? इसोफेगस है। यानी कि दिस पार्ट इज ट्रैकिया एंड दिस पार्ट इज इसोफेगस। ट्रैकिया जहां से स्टार्ट होता है वहां पर एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस।
a cartilaginous structure and this is known as epiglottis. Epi mean upon, glottis mean terminal part of trachea. This is a cartilaginous स्ट्रक्चर है। ओके, कुछ मसल्स और बोन्स के साथ ये अटैच होता है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर। अब क्या होगा कि जैसे ही हम फूड इनगल्फ करते हैं तो ये जो ट्रैकिया है ये पहले आ जाता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। तो फूड पाइप में चला जाएगा, सॉरी विंड पाइप में चला जाएगा, तो ये तो कोई काम का ही नहीं है और उसको ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए ट्रैकिया है। कैसे होगा कि जैसे यहाँ पर फूड पार्टिकल कोई गिरेगा, जैसे यहाँ पर ऐसे गिर रहा है तो इस पे फोर्स लगाएगा तो ये फ्लैप ये ऐसे बंद हो जाएगा। ओके, तो ये इसको कवर कर लेगा ऐसे और फूड डायरेक्टली इसमें चला जाएगा फूड पाइप में। क्लियर है? अब एपिग्लोटिस तो ये काम करेगा। जैसे ही ट्रैकिया शुरू होता है वहां पर एक और स्ट्रक्चर होती है, एक ऐसे वी कैन से एक स्ट्रक्चर होती है, वी कैन से बाइलिप लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड दैट इज नोन एज लैरिंग्स। दैट इज नोन एज ए लैरिंग्स एंड दिस लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। ये वॉइस प्रोड्यूस करता है। आपने जरूर जब बचपन में अभी कभी किया होगा, एक कागज को ऐसे मोड़ के और फिर इसमें ऐसे हवा मारते हैं ऐसे, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो सेम वैसे ही है, ये जो बाइलिप लाइक स्ट्रक्चर है, लैरिंग्स है, इसमें से जब एयर पास होती है तो वो वाइब्रेशन करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस लैरिंग से वर्ड आया ये लैरिंगोफेरिंक्स। तो क्या क्या पार्ट हो गए? अगर हम इस हेड रीजन की बात करें तो हमारे पास इसमें नेचर कैविटी, देन नेजोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, एपिग्लोटिस, देन अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया और उसी के साथ क्या है? लैरिंग्स है। ओके, तो लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया आगे चलता जाएगा। इज क्लियर और नॉट? तो नेजल कैविटी, देन नेजोफेरिंक्स, देन एपिग्लोटिस, देन लैरिंग्स, और ये किसके साथ है? ट्रैकिया के साथ। ओके, तो ये सारा पार्ट हमारे इस हेड रीजन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ओके, यहीं तक करना है। ठीक है।